کبھی آپ پر یہ گمان ہوا ہے کہ زندگی آپ کے خلاف بغاوت کر رہی ہو، یا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی جیسے آپ کے حق میں نہیں جا رہی؟ ہر چیز جیسے تھم گئی ہو، ہر راہ مسدود ہو، اور دل پر ایسا بے نام بوجھ ہو جسے زبان الفاظ میں قید نہ کر سکے۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایک اندیکھا غم جو ہر لمحہ دل کو چہو کر گزرے، جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو، ہر راستہ بند ہو، اور آپ کے دل میں ایسا بوجھ ہو جسے آپ بیان بھی نہ کر سکیں۔ وہ راتیں جب نیند آپ کی آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے اور آپ بس یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ لمحے جب دنیا آپ کو تنہا چھوڑ دیتی ہے، اپنے پرائے سب دور ہو جاتے ہیں اور آپ خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کے ان کٹھن لمحات میں دل کسی انجانی سمت میں رہنمائی تلاش کرتا ہے۔ ان لمحوں میں ایک احساس جاگتا ہے جو ہمیں ایک ایسے وجود کی طرف لے جاتا ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ وجود جو سب کچھ جانتا ہے، جو دل کے ہر درد سے واقف ہے، اور جو ہمیشہ آپ کے قریب رہتا ہے۔ ہاں، وہ اللہ ہے۔ کبھی غور کریں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں، دعائیں محض ایک رسم بن جاتی ہیں، اور دل اللہ کی محبت سے خالی ہونے لگتا ہے۔ مگر جب مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہماری حقیقی پناہ گاہ صرف اللہ ہے۔ یہ زندگی کی مشکلات محض اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک خاص اشارہ کہ آپ اس کے قریب آئیں۔ یہ درد، یہ غم، یہ بے بسی، دراصل اللہ کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لینا چاہتا ہے۔ زندگی کا ہر دکھ، ہر غم اور ہر تکلیف اللہ کا ایک خاص پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بندے، میں نے تمہیں چنا ہے۔ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں، تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے۔ میری طرف رجوع کرو، میں تمہیں سنوار دوں گا۔ یہ مشکلات آپ کے دل کو توڑنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اسے اللہ کی محبت سے بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ درد آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اور جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آزمائش دراصل ایک انعام ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال تب اور زیادہ گہرا ہوتا ہے جب ہم مشکلات یا تکالیف سے گزرتے ہیں۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آیا ہم جو کر رہے ہیں وہ واقعی ہمیں سکون دے رہا ہے، یا ہم صرف دنیا کے بھنور میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ زندگی میں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں اور سب کچھ آسانی سے چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں کبھی یہ حقیقت سمجھنے کا وقت نہیں ملتا کہ اصل مقصد کیا ہے۔ لیکن جب ہم مشکلات اور تکالیف میں پھنس جاتے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ہمیں ہماری اصل حقیقت اور زندگی کے مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مشکلات ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ جب ہم تکلیف اور دکھ سے گزرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف ایک مسافر ہیں اور ہمارے لیے اصل منزل اللہ کی طرف ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی کے مقصد کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ بے شک ہم تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کریں گے تاکہ ہم تمہارے دلوں کو صاف کریں اور تمہاری روحوں کو اللہ کی طرف مائل کریں۔ سورہ بقرہ 155۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مقصد کے مطابق ڈھالنا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ مشکلات صرف اس لیے نہیں آتے کہ ہم ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ ہم اپنی روح کو پاک کریں اور اللہ کے قریب پہنچیں۔ زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیوں میں نہیں، بلکہ اس حقیقت میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر اس مقصد کو پہچان لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت، اس کی رضا اور اس کے راستے پر چلنا ہے، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک مقصد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مشکلات انسان کو اس بات کا ادراک دیتی ہیں کہ اصل کامیابی اور سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ لمحے جب انسان کو لگتا ہے کہ ہر چیز اس کے قابو سے باہر ہے، وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور یہ راستہ مشکلات سے گزرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں محض گزارا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں اس کا پیغام دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اس کی رضا کی کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں،
اور میں نے जन्नत और इंसानों को सिर्फ उस लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात छिपटा आइन। जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद की तकमील या दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपने रब की रज़ा के लिए जाएं। जब हम अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा को मानते हैं तो मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए है। जब इंसान अल्लाह का रास्ता इख्तियार करता है तो उसका दिल सुकून महसूस करता है और जिंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों को वो अल्लाह के करीब जाने का जरिया समझता है। मुश्किलात को अल्लाह की तरफ से एक दर्स समझना और उनसे हिम्मत व इज़्म हासिल करना जिंदगी के मकसद को पहचानने की सबसे बड़ी अलामत है। याद रखें, जिंदगी का मकसद ये नहीं कि आप कितनी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि आप अल्लाह की रज़ा की तलाश में कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इस मकसद को पहचान लेते हैं तो हमें सुकून मिलता है और हम अपनी मुश्किलात को अल्लाह के करीब जाने का जरिया समझकर जीते हैं। मुश्किलात से आपके अंदर इंसानियत पैदा होती है। जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ आजमाइशें नहीं होती, ये दरअसल आपकी शख्सियत को निखारने, आपके दिल को नरम करने और आपके अंदर इंसानियत पैदा करने का जरिया बनती हैं। जब आप किसी दुख, गम या आजमाइश से गुजरते हैं तो वो आपको दूसरों के दुखों को समझने के काबिल बनाती हैं। ये वो वक्त होता है जब आपको एहसास होता है कि दुनिया में हर शख्स किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। जब आप खुद किसी परेशानी का सामना करते हैं तो आपका दिल नरम हो जाता है। वो सख्ती जो शायद आपके रवैये में थी वो खत्म होने लगती है। आपको एहसास होता है कि जिस दर्द ने आपको रिलाया वही दर्द किसी और के दिल में भी हो सकता है। यही वो लम्हा होता है जब आपके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। मुश्किलात का एक बड़ा मकसद ये है कि वो आपको इंसानियत के करीब ले आएं। नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो उस पर जुल्म करता है और न ही उसे बेयार व मददगार छोड़ता है। सही बुखारी। आप जब खुद किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो आपको मालूम होता है कि तन्हाई कैसी होती है, दिल का दुख कैसा होता है और बेबसी क्या चीज है। यही एहसास आपको दूसरों के लिए एक बेहतर इंसान बनाता है। आप उनके दुखों को समझने लगते हैं, उनके साथ खड़े होने का हौसला पैदा करते हैं और उनके आंसू पूंछने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हम तुम्हें आजमाते हैं खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी के जरिए, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा 125। ये आयत हमें ये समझाती है कि मुश्किलात दरअसल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, लेकिन ये मजबूती सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि रूहानी और जज्बाती भी होती है। जब आपको अपनी कमजोरी का एहसास होता है तो आप अल्लाह के करीब होते हैं, और जब आप दूसरों की मुश्किलात को समझते हैं तो आप इंसानियत के करीब हो जाते हैं। मुश्किल वक्त के बाद जब आप संभलते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन चुके होते हैं। आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है जो आपको दूसरों की मदद करने पर इकसाता है। वो एहसास जो आपको ये समझाता है कि शायद आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। मुश्किलात आपके अंदर वो रहम पैदा करती हैं जो अल्लाह के खास बंदों की पहचान है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स जमीन वालों पर रहम करेगा, आसमान वाला उस पर रहम करेगा। तिरमिज़ी। जिंदगी के उन इम्तिहानात को एक मौका समझें। ये अल्लाह का पैगाम है कि वो आपको बेहतर बनाना चाहता है। वो आपके दिल को सख्ती से निकालकर मोहब्बत और रहम से भरना चाहता है। जब आप मुश्किलात से गुजरें तो ये सोचें कि शायद ये आपके अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए हो रही हैं। किसी के दुख में शरीक होने का जज्बा, किसी की मदद करने का इरादा और किसी के आंसू पूंछने की नीयत, यही वो खूबियां हैं जो आपको अल्लाह के करीब कर देती हैं। मुश्किलात आपको इन खूबियों से नवाजती हैं और यही आपकी असल कामयाबी है। मुश्किलात अल्लाह की रहमत और इस्लाह का जरिया। जिंदगी के सफर में जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान अक्सर खुद को बेबस और तन्हा महसूस करता है, मगर हमें ये जानना चाहिए कि ये आजमाइशें सिर्फ मुसीबतें नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का छुपा हुआ पैगाम है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, सूरह बकरा 286, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये मुश्किलात हमारे दिल को नर्म करने, हमारे तकब्बुर को तोड़ने और हमें अपनी हैसियत याद दिलाने के लिए आती हैं। जब हम पर आजमाइश आती है
तो ये हमें अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर करती है। ये हमें ये सबक देती है कि हम सब कुछ अपने काबू में नहीं कर सकते और हम हर लम्हा अल्लाह के मोहताज हैं। नबी करीम ने फरमाया, सही बुखारी, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह वही इंसान आजमाता है जिसे वो अपने करीब करना चाहता है। ये आजमाइशें हमारी इस्लाह करती हैं, हमारे दिल को नरम बनाती हैं और हमें शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाती हैं। अगर हम उनका सामना सब्र व शुक्र के साथ करें तो हम फरिश्तों से भी अफजल बन सकते हैं। मगर अगर हम तकब्बर करें, नाशकरी करें या इन आजमाइशों को बेमकसद समझें तो हमारा हाल शैतान जैसा हो सकता है, जो अपने तकब्बर की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम हुआ। यही वजह है कि मुश्किलात हमें आजिज़ी की तरफ बुलाती हैं और हमारा नर्म दिल बनना ही अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। आएं, दुआ करें, या अल्लाह हमें उन आजमाइशों को समझने और इनमें सब्र व शुक्र करने की तौफीक दे। हमारे दिलों को नरम बना दे, हमारी रूहों को आजिज़ी से मुनव्वर फरमा, हमें तकब्बुर और गुरूर से बचा और हमारी मुश्किलात को कामयाबियों में बदल दे। या अल्लाह हमें अपनी रज़ा के करीब कर और हर हाल में हमें अपनी रहमत का हिस्सा बना। आमीन। प्यारे दोस्तों, ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन आजमाइशों की हिकमत को समझ सकें। हर मुश्किल में अल्लाह की हिकमत को देखें और उसे अपनी इस्लाह का ज़रिया बनाएं। ये ज़िंदगी अल्लाह के करीब होने का एक मौका है, उसे ज़ाया ना करें।